Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, today is our English literature turn. So today we shall read English literature in our today's class. And students, today we are going to start a new chapter of our English literature book as we Shastra. And students, the number of this new chapter is chapter 10 and the name of the chapter 10 is How the Leaves Came Down. Okay, so students, today we shall read a new chapter, chapter 10, How the Leaves Came Down of our English literature book as we Shastra in our today's class. And students, in this chapter 10, How the Leaves Came Down, today's our topics are, our first number topic is about the seasons and our second number topic is summary of first to third number stanzas of the chapter 10 How the Leaves Came Down. Okay, so all students, please be partial attention in your class and listen to my words clearly, because today firstly we shall read about the seasons and then we shall read and explain summary of first to third number stanzas of the chapter 10 How the Leaves Came Down in our today's class. Okay, so all students, let's see chapter 10. Students, the name of this chapter 10 is How the Leaves Came Down. How it's been kaise the leaves, it's been पत्तियां. Students, leaves, it's a plural form of leaf, L-E-A-F. Leaf means होता है पत्ती and leaves, L-E-A-V-E-S. Leaves means होते हैं पत्तियां. Okay. Came, it's mean I. Came, it's a second form of come. Come means आना and came means I. Down, it's mean नीचे. The name of the chapter 10 is How the Leaves Came Down. It's mean पत्तियां नीचे कैसी आई. Okay. Students, this chapter 10 How the Leaves Came Down is based on forestry. ये जो chapter 10 है ना, How the Leaves Came Down, it's mean पत्तियां नीचे कैसे आई, ये forestry पर based है. It's mean कि वन पर आधारित है. Okay. So students, let's read about the seasons. Okay. The four seasons are spring, summer, autumn and winter. The four seasons, it's mean चार ऋतुएं. R means है spring, it's mean बसंत. Summer, it's mean ग्रीष्म. Autumn, it's mean पतझड़. And means or winter, it's mean शीत. Okay, the four seasons are spring, summer, autumn and winter. It's mean चार ऋतुएं बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शीत है. ओके, तो स्टूडेंट जो हमारे फोर सीजन्स होते हैं, चार ऋतु होती है, वो कौन कौन से होती है? स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. इट्स मीन बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु और शीत ऋतु. क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सी नेक्स्ट लाइन. While in spring and summer the weather is warm and the trees begin to grow their leaves, in autumn and winter the weather changes and the leaves start to change color and fall off the trees. Okay, तो while in spring and summer it's mean कि बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में. ओके, तो जब बसंत ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु होती है, तो बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में द वेदर, इट्स मीन मौसम, एज इट्स मीन होता है. ओके, वार्म इट्स मीन गर्म एंड मीन्स और द ट्रीज इट्स मीन जो पेड़ होते हैं, बिगिन इट्स मीन शुरू कर देते, टू ग्रो इट्स मीन उत्पन्न करना. ओके, या बढ़ाना. दियर मीन्स अपनी, लीव्स मीन्स पत्तियां. ओके, तो वाइल इन स्प्रिंग एंड समर द वेदर इज वार्म एंड द ट्रीज बिगिन टू ग्रो दियर लीव्स. इट्स मीन कि बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में जो मौसम होता है वो गर्म होता है और पेड़ क्या करते हैं स्प्रिंग एंड समर सीजन में, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में जब मौसम गर्म होता है वो अपनी पत्तियों को उत्पन्न करना, ओके, उन्हें बढ़ाना स्टार्ट कर देते. ओके, इट्स मीन कि ट्रीज में न्यू लीव्स आने लगती, ओके, नई पत्तियां आने लगती है. ओके, इन ऑटम एंड विंटर इट्स मीन कि पतझड़ और शीत ऋतु में द वेदर चेंजेस, तो जो मौसम होता है ना वो बदल जाता है, एंड द लीव्स स्टार्ट टू चेंज कलर एंड फॉल ऑफ द ट्रीज. ओके, जो लीव्स होती, पत्तियां होती, वो स्टार्ट इट्स मीन शुरू कर देती, टू चेंज कलर इट्स मीन रंग को परिवर्तित करना, एंड मीन्स और फॉल ऑफ द ट्रीज और पेड़ों से गिरना. ओके, तो क्या होता है कि बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में जो वेदर होता है, मौसम होता है, वो वार्म होता है, गर्म होता है. ओके, तो जो ट्रीज होती है वो क्या करती है, लीव्स को ग्रो करना स्टार्ट कर देती, इट्स मीन पत्तियों को उगाना शुरू कर देती. ओके, ट्री में न्यू न्यू लीव्स आने लगती, नई नई पत्तियां आने लगती है. ओके, और फिर क्या होता है, जबकि विंटर और ऑटम सीजन में इट्स मीन कि शीत ऋतु में, ओके, सर्दी के टाइम में और पतझड़ ऋतु में जो मौसम होता है वो चेंज होने लगता है, और जो पत्तियां क्या करती है, पत्तियां अपने कलर को चेंज करना स्टार्ट कर देती है. ओके, अपने रंग को परिवर्तित करना शुरू कर देती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है. क्लियर? In this picture, mark the numbers to indicate the sequence of the seasons. In this picture, it's mean इस चित्र में mark means अंकित करिए, the number it's mean संख्या, to indicate it's mean निर्दिष्ट करने के लिए, दर्शाने के लिए, the sequence of the seasons. Sequence means क्रम, of means का, seasons it's mean ऋतु. Okay, in this picture, mark the numbers to indicate the sequence of the seasons. It's mean कि इस चित्र में ऋतुओं के क्रम को निर्दिष्ट करने के लिए, ऋतुओं के क्रम को दर्शाने के लिए संख्या को अंकित करी. ओके, तो स्टूडेंट्स इस पिक्चर में हमें क्या करना है, नंबर मार्क करना है. ओके, जो करेक्ट सीक्वेंस होगा सीजन्स का. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सीजन्स आर स्प्रिंग, समर
ऑटमन एंड विंटर। ओके, तो सबसे पहले स्प्रिंग आती है, ओके, बसंत ऋतु आती है, और फिर समर आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, ओके, गर्मी का टाइम आता है, और फिर ऑटमन आता है। इट्स मीन कॉल्ड ऑटमन आल्सो फॉल। ओके, ऑटमन को हम लोग फॉल भी बोलते हैं, पतझड़ ऋतु। ओके, एंड विंटर्स के बाद आता है शीत ऋतु आती है, ओके, सर्दी का टाइम आता है। स्टूडेंट्स, इट्स योर फर्स्ट सीजन। ओके, ये आपका फर्स्ट सीजन होता है स्प्रिंग सीजन। ओके, इट्स मीन बसंत ऋतु, एंड सेकेंड सीजन आपका होता है समर सीजन, इट्स मीन ग्रीष्म ऋतु, एंड थर्ड सीजन आपका होता है ऑटमन, और वी कैन से आल्सो फॉल। ओके, पतझड़ ऋतु, एंड 4 नंबर सीजन होता है विंटर, इट्स मीन शीत ऋतु। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, we have read about the seasons and I hope you must have understood about these 4 type seasons. Okay, so students, turn your page forward because now we are going to start this chapter 10, how the leaves came down. Okay, so students, let's see. Now let us read a poem about the trees in autumn season. Now means अब let us read, चलिए हम पढ़ते हैं। ए मीन्स एक, पोम मीन्स कविता, अबाउट मीन्स बारे में, द ट्रीज इट्स मीन पेड़ों, इन ऑटम सीजन इट्स मीन पतझड़ ऋतु में। ओके, नाउ लेट अस रीड अ पोम अबाउट द ट्रीज इन ऑटम सीजन, इट्स मीन कि चलिए अब हम पतझड़ ऋतु में पेड़ों के बारे में कविता पढ़ते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस पोम। I shall tell you how the leaves came down. The great tree to his children said, "You are getting sleepy, yellow and brown. Yes, very sleepy, little red. It is quite time to go to bed. Ah, back each silly, pouting leaf. Let us a little longer stay. Dear father tree, behold our grief. 'Tis such a very pleasant day. We do not want to go away. So for just one more merry day, to the great tree the leaflets clung, frolicked and danced and had their way. Upon the autumn bridges sung, whispering all their spots among. Perhaps the great tree will forget." Okay, so students, the poet of this poem, How the Leaves Came Down, is Susan Coolidge. Okay, so students, ये जो poem है इसके जो poet है वो है Susan Coolidge. Okay, students, now I'm going to explain summary of these 3 stanzas. So let's see. First stanza of this poem. I shall tell you how the leaves came down. Okay, students, our poet says to us, जो हमारे poet हैं, okay, वो हमसे कहते हैं कि I shall tell you, तो मैं आपको बताऊंगा how, it's mean कैसे, the leaves it's mean पत्तियां, came it's mean I, came at the second form of come, come means आना and came means I, down means नीचे. I shall tell you how the leaves came down, it's mean कि मैं आपको बताऊंगा कि पत्तियां नीचे कैसे आई. ओके, द ग्रेट ट्री टू हिज चिल्ड्रन सेड, द ग्रेट ट्री इट्स मीन बड़ा पेड़. ओके, टू हिज चिल्ड्रन इट्स मीन अपने बच्चों से, सेड इट्स मीन कहा, सेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ से मीन्स कहना, सेड मीन्स कहा. द ग्रेट ट्री टू हिज चिल्ड्रन सेड इट्स मीन बड़े पेड़ ने अपने बच्चों से कहा, यू आर गेटिंग स्लीपी येलो एंड ब्राउन, यस वेरी स्लीपी लिटिल रेड. ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेट ट्री है इसके चिल्ड्रन कौन है, इसके बच्चे कौन है, तो उनकी जो लीव्स है, ओके, जो ट्री की लीव्स है, पेड़ की पत्तियां हैं, वो उस ट्री की चिल्ड्रन है, उस पेड़ के बच्चे. ओके, स्टूडेंट्स, एक ट्री होता है ना, एक पेड़ होता है, तो उस ट्री में जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, वो उस ट्री के चिल्ड्रन होते हैं. ओके, वो इस पेड़ के बच्चे होते हैं. और जो एक ट्री होता है उसमें जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, तो उन लीव्स के फादर कौन होते हैं, उन लीव्स के फादर वो ट्री होता है, वो ग्रेट ट्री होता है, बड़ा सा पेड़ होता है. ओके, तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि पोइट कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि पत्तियां नीचे कैसे आई. बड़े पेड़ ने अपने बच्चों से कहा. ओके, तो जो बड़ा पेड़ है वो अपने बच्चों से कह रहा है, आई मीन टू से कि पोइट कहना चाहते हैं कि जो ट्री है ना वो लीव्स से कहता है. ओके, ट्री ने लीव्स से कहा, पेड़ ने किससे कहा, पत्तियों से कहा. क्या कहा, You are getting sleepy, yellow and brown. Yes, very sleepy, little red. Okay, it's mean कहा कि जो पीली, भूरी और कुछ लाल पत्तियां हैं, ओके, उनसे ग्रेट ट्री कह रहा है कि इन विच सीजन, किस सीजन में कह रहा है, किस ऋतु में कह रहा है, तो ऑटोमन सीजन में कह रहा है. ओके, पतझड़ ऋतु में बोलता है. तो स्टूडेंट्स, ऑटोमन सीजन इट्स मीन पतझड़ ऋतु. पतझड़ ऋतु में ग्रेट ट्री, बड़ा सा पेड़, अपने चिल्ड्रन इट्स मीन अपनी लीव्स से, अपनी पत्तियों से कहता है, येलो, ब्राउन एंड रेड लीव से कहता है, पीली, भूरी और लाल पत्तियों से कहता है कि ये एक ऐसा टाइम है जब तुम्हें नींद आ रही है. ओके, एंड और ये तुम्हारे सोने का सबसे अच्छा समय. ओके, इट इज क्वाइट टाइम टू गो टू बेड. ये आपके बिस्तर में जाने का सबसे अच्छा समय, आपके सोने का सबसे अच्छा समय है. क्लियर? स्टूडेंट्स, लेट्स सी सेकंड नंबर स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. अ बैक ईट सिली पाउटिंग लीफ, लेट अस अ लिटिल लॉन्गर स्टे. ओके, स्टूडेंट्स, क्या होता है कि बैक ईट सिली पाउटिंग लीफ. तो स्टूडेंट्स, एज दैट यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कि पतझड़ के मौसम में, ऑटोमन सीजन में
पेड़ों से पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाती। ओके, तो ये उसी ऑटमन सीजन पतझड़ ऋतु की बात हो रही है कि जब एक ग्रेट ट्री, एक बड़ा सा पेड़ अपनी चिल्ड्रन, इट्स मीन कि अपनी लीव्स से, अपनी पत्तियों से कहता है कि ये तुम्हारे सोने का सबसे अच्छा समय है। ओके, तो आ बैक ईट सिली पाउटिंग लीफ, तो हर एक पत्ती, ओके, हर एक लीफ बैगिंग कर रही है, याचना कर रही है, ओके, विनती कर रही है, क्या कहती है कि, और उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। ओके, तो वो विनती भी कर रही, याचना भी कर रही, उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ा सा एंग्री हो रही है, मुंह बना रही है, मुंह फुला रही, ओके, गुस्से में। स्टूडेंट्स, पाउटिंग, हियर द मीनिंग ऑफ पाउटिंग इज मेकिंग अ फेस यूजिंग वंस लिप्स टू शो अनोइंस। इट्स मीन कि अपना गुस्सा दिखाने के लिए, अपना क्रोध दिखाने के लिए, ओके, ये दिखाने के लिए कि हम गुस्से में, मतलब अपना लिप का यूज़ करते हुए, अपने एक ओंठ का प्रयोग करते हुए मुंह बनाना, उसे बोलते हैं पुटिंग। ओके, इट्स इन मुंह बनाना। ओके, तो वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो लीव है, तो कुछ लीव क्या कर रही है, एंग्री हो रही है, ओके, गुस्से, उन्हें गुस्सा आ रहा है, गुस्से में, और कुछ जो लीव है वो क्या कर रही है, पुटिंग कर रही। इट्स मीन कि मेकिंग अ फेस यूजिंग वन स्लीव्स टू सो अनॉयंस, अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपना एक ओंठ का प्रयोग करते हुए मुंह बना रही है ना। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब ग्रेट ट्री बोलता है कि तुम्हारे सोने का सबसे अच्छा समय है, ओके, तो हर एक पत्ती बैगिंग करने लगती है, ओके, याचना करने लगती है, और उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो पुटिंग भी करती है, मुंह भी बनाती है, ओके, मुंह फुला रही है, और क्या बोलती है, बोलती है डियर फादर ट्री, ओके, प्रिय पिताजी पेड़, ओके, बी होल्ड अवर ग्रीफ। स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ बी होल्ड इज सी, इट्स मीन देखना। ओके, तो जो लीव्स है ना, पत्तियां है, वो बोलती है डियर फादर ट्री, इट्स मीन प्रिय पेड़ पिताजी, ओके, क्या जब हम नीचे गिर जाएंगे, ओके, टिस सच अ डियर फादर ट्री बी होल्ड अवर ग्रीफ। इट्स मीन कि जब हम नीचे गिर जाएंगे तो आप हमें देखना चाहते हैं नीचे गिरे हुए, ओके। तो फिर लीव कहती है, जो लीव से पत्तियां कहती हैं कि सच अ वेरी प्लीजेंट डे। स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ प्लीजेंट इज प्लीजिंग टू वन सेंसेस। इट्स मीन किसी की इंद्रियों को पसंद करना, ओके, खुश करना। इट्स मीन प्लीजेंट, इट्स मीन सुहावना, बहुत अच्छा, ओके। इट इज सच अ वेरी प्लीजेंट डे। इट्स मीन कि डियर फादर ट्री, इट्स मीन प्रिय पिताजी पेड़, या प्रिय पेड़ पिताजी, सच में ये एक बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही सुहावना दिन है, ओके। वी डू नॉट वांट टू गो अवे, ओके, तो हम नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए हम सिर्फ एक दिन के लिए, ओके, क्योंकि ये बहुत प्लीजेंट है, बहुत सुहावना दिन है, ओके, इसलिए हम सिर्फ एक दिन के लिए ये जो मैरी डे है, ओके, इस मैरी डे में हम रुकना चाहते हैं, ओके। वी डू नॉट वांट टू गो अवे, अभी हम नहीं जाना चाहते यहाँ से, हम इस प्लीजेंट डे को एंजॉय करना चाहते हैं, इस सुहावने दिन का आनंद लेना चाहते हैं, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा। So for just one more merry day, okay, to the great tree the leaflets clung, okay, तो so it's mean इसलिए for just one more merry day, तो सिर्फ एक और दिन के लिए, सिर्फ इस मैरी डे के लिए, ओके, मैरी डे इट्स मीन खुश रखने वाला दिन, प्रसन्न करने वाला दिन, ओके, तो हम सिर्फ इस मैरी डे के लिए, इस अच्छे दिन के लिए हम रुकना चाहते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए, हाँ। And students, share the meaning of leaflets, okay, leaflets it's mean single leaf, okay, single leaves it's mean कि जो पत्ते चिपके हुए हैं, ओके, बड़े से ट्री के, ओके, तो लीफलेट्स इट्स मीन सिंगल ट्री, अकेली पत्ती। एंड स्टूडेंट्स, क्लंग मीन्स होता है चिपकना, ओके, तो क्या होता है कि एंड हियर द मीनिंग ऑफ फ्रोक्लिट, ओके, तो फ्रोलिक्ड का मीनिंग होता है प्लेड अबाउट इन अ फन मैनर। इट्स मीन कि एक फन मैनर में प्ले करना, ओके, इट्स मीन एक मज़ेदार तरीके से खेलना, ओके। तो वे जो पत्तियां हैं वो कहती हैं हमें सिर्फ एक दिन के लिए और इस ट्री में रहने दो, ओके, हम नहीं जाना चाहते इस ट्री से, हम इस मैरी डे को एंजॉय करना चाहते हैं, ओके, इस प्लीजेंट डे को एंजॉय करना चाहते हैं, इसका आनंद लेना चाहते हैं। टू द ग्रेट ट्री द लीफलेट्स क्लंग, तो जो पत्तियां हैं जो चिपकी हुई है बड़े से ट्री के, बड़े से पेड़ के, ओके, और फ्रोलिक्ड एंड डांस्ड एंड हैड देयर वे अपॉन द ऑटोमन ब्रिजेस स्विंग। इट्स मीन वे जो कुछ खेल रही है, कुछ डांस कर रही है, कुछ इधर उधर घूम रही है, ओके, कुछ इधर उधर घूम रही है, और वे सारे पत्ते कहते हैं कि हमें सिर्फ एक दिन के लिए, हमें इस प्लीजेंट डे को एंजॉय कर लेने दो, सिर्फ एक दिन इस ट्री में रहने दो, ओके, हम नहीं जाना चाहते, अभी हम नहीं सोना चाहते, ओके। तो जो पतझड़ की हवा चल रही है, अपॉन द ऑटोमन ब्रिजेस सॉन्ग विस्परिंग ऑल डियर स्पॉट्स अमंग, ओके, परहैप्स द ग्रेट ट्री विल फॉरगेट। तो क्या होता है कि जो पतझड़ की हवा चल रही है, टॉमन की जो ब्रिजेस हैं, ओके, तो तेज जो हवा है वो उससे क्या हो रही है, जो पेड़ की डाली है वो झूला झूल रही है, ओके, उसकी जो ब्रांचेस है ट्री की वो बहुत तेजी से हवा के कारण मूव कर रही इधर उधर, और उन पत्तियों को विस्परिंग कर रही, ओके, इट्स मीन फुसफुसा के उनसे
धीरे धीरे बातें कर रही है, ओके, और उनसे कह रही है कि परहैप्स द ग्रेट ट्री विल फॉरगेट, इट्स मीन कि शायद हमारा जो डियर फादर ट्री है, प्रिय पेड़ पिताजी है, वो हमें भूल जाएंगे, ओके, क्या भूल जाएंगे फादर ट्री, इट्स मीन कि हमें सुलाना भूल जाएंगे, ओके, शायद मतलब इतना प्लेजेंट डे तो हो सकता है कि शायद हमारे जो डियर फादर ट्री है, हमारे जो प्रिय पेड़ पिताजी है, वो शायद हमें मतलब सुलाना भूल जाए, हमें पेड़ से गिराना भूल जाए, ओके। सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड and explained summary of 1st to 3rd number stanzas of this chapter 10, how the leaves came down, in our today's class. And students, I hope you must have understood summary of these 3 stanzas of this chapter 10, how the leaves came down, which we have read in our today's class. And I hope you have no problem in any line, in any word in these stanzas, okay. Now students, I'm going to describe your classwork and homework, so all students listen to my words clearly. Students, today's your classwork is that read these stanzas of this chapter 10, how the leaves came down, from your English literature book as well as and try to find out the summary of these stanzas and send me a voice recording here. It's a today's classwork. And students, today's your homework is that learn 8-line poem with its poet name of chapter 10, how the leaves came down, from your English literature book as well as it's a today's homework, okay. So all students, firstly complete your classwork. Read these stanzas of this chapter 10, how the leaves came down, from your English literature book as well as and try to find out the summary of these stanzas and send me a voice recording here. Thank you.